آج ویو 360 میں گوادر میں حق دو تحریک کے مظاہرے اور پولیس کے لاٹھی چارج کے بعد اب کیا صورتحال ہے؟ چائنا کے خلاف نہیں، اپنے ریاست پاکستان کے بے حس اور ڈاکو حکمرانوں کے خلاف ہے۔ لے کر جائیں گے آپ کو پشاور کے ایک ایسے مدرسے میں جہاں اساتذہ اور طالب علم سب نابینا ہیں۔ میں نے اپنے معذوری کو جو ہے وہ مجبوری نہیں سمجھا ہے کبھی۔ امریکہ میں سال 2022 گن وائلنس کے واقعات کے اعتبار سے کیسا رہا؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ بلوچستان کی اہم ترین بندرگاہ اور ساحلی شہر گوادر میں گزشتہ روز سے حالات کشیدہ ہیں۔ گوادر میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب حق تو تحریک کے دھرنوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے شیلنگ کی تھی، جس سے دھرنے میں موجود خواتین اور بچے بھی شدید متاثر ہوئے۔ پولیس نے کئی افراد کو حراست میں بھی لیا تھا، جن میں تحریک کے کئی رہنما بھی شامل ہیں۔ کوئٹہ سے ہمارے ساتھی مرتضیٰ زہری اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مرتضیٰ، یہ بتائیے کہ گوادر میں اس وقت کیا حالات ہیں اور پولیس کی کارروائی کے بعد کیا مظاہرے ختم ہو گئے؟ جی بالکل، جیسے جو کل واقعہ ہوا، کیونکہ جو عقد و تحریک ہے وہ تقریباً 2 ماہ سے وہاں پر احتجاج کر رہی ہے، لیکن کل یہ واقعہ پیش آیا جب اس سے پہلے وزیر داخلہ بلوچستان جو ہے انہوں نے وہ وہاں پر گوادر پہنچے اور مذاکرات کی، لیکن وہ مذاکرات ناکام ہوئے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا جیسے ہی وزیر داخلہ جو ہے وہ واپس گوادر سے کوئٹہ پہنچے تو وہاں پر جو ہے پولیس نے جو حق و تحریک کے جو دھرنا ہے وہاں پر پہنچے اور شیلنگ کی۔ اس وقت یہ صورتحال ہے، تقریباً عقد و تحریک کے 7 اہم رہنما جو ہے وہ گرفتار ہے۔ جو عقد و تحریک کے قائد ہیں مولانا عدایت الرحمان، وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ جو افراد گرفتار ہوئے ہیں ان کو جو ہے رہا کیا جائے۔ اس کے بعد دیگر جو مطالبات ہیں، اس وقت گوادر شہر اور اس کے آس پاس کے جتنے بھی تحصیلیں ہیں وہاں پر جو ہے صورتحال ابھی کشیدہ ہے اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ کل بھی وہاں پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی تھی۔ اب اس وقت جو عقد و تحریک مطالبہ ہے، جو حکومت کو ایک چارٹر پیش کیا گیا تھا، اس کو پیچھے چھوڑ کے اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو رہنما ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، جس کے بعد ہی حکومت سے کوئی بات ہو سکتی ہے۔ کراچی سے مرتضیٰ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گوادر میں چینی منصوبوں اور چینی ورکرز کے بارے میں حق تو تحریک کے رہنما مولانا ہدایت اللہ نے گزشتہ روز کیا کہا، ان کے مطالبات کیا ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ چائنا کے ہم خلاف نہیں ہیں، چائنا گورنمنٹ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، ہماری پوری تحریک چائنا کے خلاف نہیں ہے، اپنے ریاست پاکستان کے بے حس اور ڈاکو حکمرانوں کے خلاف ہے۔ لیکن اگر چائنا اس ریاست پاکستان کے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر بلوچستان میں ان میں زمینوں کو اہمیت دیتے ہیں لیکن یہاں کے پبلک کو اہمیت نہیں دیتے، تو اس سلسلے میں گزارش ہے جب تک ہمارے احتجاج چل رہا ہو تو چائنا کو گوادر سے نکلنا چاہیے، اخلاقی طور پر گوادر کے عوام کا ساتھ دینا چاہیے، گوادر کے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، لوگوں کے خواتین کا ساتھ دینا چاہیے، یہاں کے مظلوم ماہیگیروں کا ساتھ دینا چاہیے۔ احتجاجاً گوادر کا عوام کو ساتھ دے کر احتجاجاً گوادر سے چلا جانا چاہیے۔ مرتضیٰ، جیسے کہ ہم نے حق دو تحریک کے مطالبات دیکھے، ان میں چینی سرمایہ کاری پر بھی تشویش پائی جاتی ہے، ان مطالبات پر حکومت کا کیا موقف ہے؟ جی بالکل، جیسے مولانا ہدایت الرحمان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو چینی باشندے ہیں وہ اس وقت تک گوادر سے نکل جائے جب تک کہ ان کے جو مطالبات حکومت بلوچستان یا حکومت پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں، تب تک جو باشندے ہیں ان کو رہنے کا وہاں پر حق نہیں ہے۔ لیکن کل اس حوالے سے جو ضیاء اللہ لانگو ہیں بلوچستان کے وزیر داخلہ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ جو گزشتہ سال عقد و تحریک کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا اور جو چارٹر پیش کیا گیا تھا ان کے تمام مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا ہے، لیکن اس سال ایک بار پھر عقد و تحریک جو ہے انہوں نے دھرنا دیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن آ رہے ہیں اور جو عقد و تحریک ہے یا ان کے قائد ہیں وہ کسی طرح اپنی سیاست چمکانا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے الیکشن میں ان کو کامیابی ہو۔ مرتضیٰ، ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں۔
या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। बलूचिस्तान में तलबा को चंद माह बाद होने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी में कई मुश्किलात दरपेश हैं, जबकि असातिज़ा निसाब को इस तरह तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं कि तलबा को एग्ज़ाम्स में तैयारी के लिए किसी हद तक आसानी हो। इस दौरान सरकारी और निजी तालीमी इदारों में हिफाजती और एहतियाती तदाबीर पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, आइए देखते हैं मुर्तज़ा ज़हरी की इस रिपोर्ट में। हमारे लोगों का ज़हन में ये नहीं आ रहा था कि भाई जो है ना दोबारा या जो है पढ़ाई शुरू हो जाए या जो है ना बच्चे इकट्ठे हो जाए या इनकी जो है ना ज़हनों से खौफ और रास निकल जाए। यहाँ पे जो सैलाब आया था ये हमारे 2 स्कूल बल्कि 3 स्कूल इसकी नज़र हो गई। एक प्राइमरी स्कूल के लिए अटक, दूसरा अहमद ख़ान, तीसरा कलिसरा जवागर सेक्शन, वो भी पानी की नज़र हो गई। हम लोगों ने जो सुबह देखा था स्कूल की बिल्कुल रिकार्ड मिकार्ड सब इस सैलाब में बह गया, बिल्कुल रिकॉर्ड तो है नहीं। इसमें लगभग 3000 स्कूल जो हैं वो कम्प्लीटली कोलैप्स हैं या पार्शली हैं या उसके कुछ कमरे जो हैं कोलैप्स हैं, और इन स्कूलों में जो कम्प्लीटली कोलैप्स्ड हैं या पार्शली हैं 3.5 लाख बच्चे और बच्चियां जो हैं इफ़ेक्ट हुए हैं। तो उसकी कंटिन्यूटी को वापस बहाल करने में हमने 75 टेम्परेरी लर्निंग सेंटर्स खोल दिए, ख़ासकर फ्लड इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें लगभग कोई 7000 बच्चे जो हैं हमने उस टेम्परेरी लर्निंग सेंटर्स में इनरोल किया और इसकी कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग को इंश्योर किया। जहाँ पर रोड साइड पे जो बच्चे थे, जहाँ पर घर आबाद थे, उनके लिए हमने गाड़ी स्कूल मुतारिफ कराया। यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने बाकायदा पेरेंट्स मीटिंग बनवाया, लाया, उसको बुलाया, उससे बात की, फिर जो है ना एक कमेटी बनाई, फिर जो है ना इन पे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया। वो ज़मीन देने के लिए कोई तैयार नहीं था, फिर जो है ना ये किली कमिश्नर अजय अब्दुल वाहिद साहब, फिर जो है ना ये तैयार हो गया, वो ज़मीन दिया था। फिर बच्चों को जो है ना यहाँ पे लाया, आहिस्ता आहिस्ता उनको समझाया कि भाई जो है ना सेम तो बदल गया। वो जो है ना वहाँ से आकर कमरों में आकर टेंट में बैठ गया, तो इनकी ज़ाहिरी बात है वो जो है ना उनका ज़हन कुछ और था, अभी जो है ना कुछ और हो गया। ज़ैनुद्दीन, ज़ियाउद्दीन, जिन बच्चों के पास कुछ किताबें थे वो हम लोग पढ़ा रहे, उनमें ग्रुप की शक्ल में बनाकर वो जिसके पास किताबें हैं वो उन्हीं बच्चों के साथ मिलाकर वो पढ़ाई हम लोगों ने शुरू कर दिया। हमारे इलाके तक 100 में से 70% तो चला गया, 30% रह गया। अभी मेरा ये अर्ज़ है सर बाला हुकाम से कि अभी जो है ना वो हमारे इलाके में जो है ना स्कूलों के काम जल्द अज जल्द शुरू कर ले, मार्च से इसमें ताख़ीर ना कर ले, ताकि बच्चों की पढ़ाई मुतासिर ना हो। और अब आपको लेकर चलते हैं पेशावर, जहां एक मदरसा ऐसा है जहां असातिज़ा और तालिबे इल्म सब नाबीना हैं। गुज़िश्ता 3 अशरों के दौरान इस मदरसे से 2500 नाबीना अफरादों ने तालीम हासिल की। अगरचे ये मदरसा बसारत से महरूम अफराद के लिए है, लेकिन वहाँ नाबीना अफराद के लिए कोई ख़ुसूसी सहूलतें मौजूद नहीं हैं। पेशावर से नज़रुल इस्लाम की रिपोर्ट। अपने जैसे बेनाई से महरूम तलबा को कुरान और तजवीद की तालीम देने वाले मोहम्मद जाकिर पेशावर के रिहायशी हैं। उन्होंने 8 साल कबल जामे हिफ्ज़ुल कुरान व तजवीद मदरसे में दाखिला लिया था, जहां तलबा और असातिज़ा सब नाबीना हैं। 1 सदी कबल तामीर होने वाली इस दरसगाह से अब तक हज़ारों की तादाद में नाबीना अफराद तालीम हासिल कर चुके हैं। इस मदरसे में जो है वो नाबीना अफराद के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सहूलियात मौजूद है। इस मदरसे में हमारे जो रात का जो है वो गुजारने का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। इस मदरसे का जो है वो और निज़ाम भी बहुत अच्छा है। ये बस ये समझे कि ये हमारा दूसरा घर है। मोहम्मद जाकिर का कहना है कि बदकिस्मती से पाकिस्तानी मुआशरे में नाबीना अफराद के लिए कोई ख़ास सहूलतें नहीं हैं, लेकिन इस मदरसे से कुरान हिफ्ज़ करने के मौके को वो अपने लिए उम्मीद की एक किरण समझते हैं। मेरी ज़िंदगी पर जो है वो यही असर पड़ा कि मैंने अपने माजूरी को जो है वो मजबूरी नहीं समझा है कभी।
मदरसे में बाकी तलबा के साथ मोहम्मद जाकिर ने भी कुरान हिफ्ज करना शुरू किया। यहाँ नाबीना तालिब इल्मों को मजहबी तालीमात हिफ्ज कराई जाती हैं। नाबीना उस्ताद तलबा को किताबें पढ़े बगैर सबक देते हैं। इसकी वजह यह है कि मदरसे में दुनिया भर में नाबीना अफराद के लिए राइज ब्रेल सिस्टम मौजूद नहीं। तकरीबन 1 सदी पहले जब इस मदरसे को यहाँ तामीर किया गया तो इसी ज़माने में नाबीना अफराद की सहूलत के लिए ब्रेल का निज़ाम भी मुतारिफ हुआ, जिसकी वजह से दुनिया भर में नाबीना अफराद के लिए इल्म का हुसूल आसान हो गया। वॉइस ऑफ अमेरिका ने मदरसे में मौजूद एक तालिब इल्म कामरान से पूछा कि क्या उन्हें ब्रेल का पता है। मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ। अगर ब्रेल सिस्टम हिफ्ज और तजवीद में कोई तब्दीली ला सकता है तो उसे सीखने में मुझे खुशी होगी। मदरसे के मोहतमिम हाजी वली खान का कहना है कि माली वसाइल के कमी के बायस मदरसा मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है, लेकिन आने वाले दिनों में वो बच्चों के लिए ब्रेल को भी रोशनास कराने का इरादा रखते हैं। नबीना अफराद के जो ख़ानदान और माशरे का सपोर्ट होना चाहिए, तो कोई भी नबीना तालीम हासिल करके अपने ख़ानदान या माशरे पे बोझ होने के बजाय वो एक मुफीद और हुनरमंद शहरी बन के अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस मदरसे की बुनियाद एक मस्जिद की शक्ल में 1 सदी कबल उज़्बेकिस्तान से आए बुखारी खानदान ने रखी। अब इस मदरसे का शुमार पेशावर की कदीम और तारीखी इमारतों में होता है। जामे हिफ्ज़ुल कुरान व तजवीद में तो ब्रेल सिस्टम राइज नहीं है, ताहम इस मदरसे से चंद किलोमीटर के फासले पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन में 10वीं जमात तक के बच्चों को ब्रेल सिस्टम के जरिए सरकारी निसाब की तालीम दी जाती है। ये इदारा सूबाई हुकूमत के ताउन से चलाया जा रहा है और बसारत से महरूम बच्चों और बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करता है। तालीम के साथ साथ हम यहाँ पे उनको मुख्तलिफ हुनर भी सिखाते हैं। हुनर के साथ साथ उनको कंप्यूटर तालीम भी दी जाती है। इसके अलावा उनको हम मोबिलिटी, ओरिएंटेशन एंड डेली लिविंग स्किल्स, ये सारे ट्रेनिंग भी हम देते हैं। इस सरकारी इंस्टीट्यूट में इस वक्त 120 तलबा व तालिबात ज़ेरे तालीम हैं। तलबा का कहना है कि ब्रेल की सहूलत की बदौलत उनके लिए तालीम का हुसूल आसान है। उससे पहले मैं आम स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पर मुझे मतलब लिखाई या पढ़ाई में नहीं कर सकता था। जो ज़ुबानी याद होता था तो बस वो ही था। लेकिन उसके बाद जब मैंने ब्रेल सीखा तो उसके बाद मैं किताबें वगैरह आज जितने भी किताबें ब्रेल में लिखी जाए मैं उनको बआसानी पढ़ सकता हूँ। ब्रेल की तालीम के बगैर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नामुकम्मल थी। दूसरी जानिब मदरसा जामे हिफ्ज़ुल कुरान व तजवीद के तालिब इल्म मोहम्मद जाकिर का कहना है कि हिफ्ज़ और तजवीद की तालीम हासिल करने के बाद वो दीगर उलूम सीखने की भी लगन रखते हैं। वो ब्रेल सिस्टम से आशना नहीं हैं, ताहम वो इस जरिए से इल्म हासिल करने के ख्वाहिशमंद ज़रूर हैं। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप, ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज्ज़िये। देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की ज़बान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। अमेरिका के लिए ये साल गन वायलेंस के एतबार से एक मोहलिक साल रहा है। मुल्क में फायरिंग के रिकॉर्ड तादाद में वाक़यात पेश आए, जिसमें एक एलिमेंट्री स्कूल पर हौलनाक हमला और मुबैना तौर पर नफरत की बुनियाद पर अंधाधुंध फायरिंग के वाक़यात शामिल हैं। इस साल में मजमूई तौर पर आतिशी असलहे से जितनी अमवात हुई उतनी अमवात तकरीबन 3 दहाइयों के अरसे में किसी एक साल में नहीं हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सन 2022 में बहुत सी अमरीकी कम्युनिटीज़ में असलहे से होने वाले तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ, जिसमें फायरिंग के रिकॉर्ड तादाद में वाक़यात में बड़े पैमाने पर हलाकतें शामिल हैं। मई में एक 18 साला बंदूक बरदार ने रियासत टेक्सास के इलाके यूवाल्डी के रॉब एलिमेंट्री स्कूल में नीम खुदकार राइफल से 19 बच्चों और 2 बालिगों को हलाक कर दिया। ये तकरीबन एक दहाई में अमरीकी स्कूल में फायरिंग का मोहलिक तरीन वाक़या था। एक हफ्ते बाद सदर जो बाइडन ने कौम से खिताब किया। For God's sake,
खुदा के लिए हमें और कितना कत्लेआम कबूल करना होगा, कितनी और मासूम अमरीकी जानें जाएंगी, जिसके बाद हम कहेंगे बहुत हो चुका। इस वाक़े से चंद दिन पहले न्यूयॉर्क के शहर बफलो की एक सुपरमार्केट में एक 19 साला नौजवान ने नीम खुदकार राइफल से फायरिंग करके 10 अफराद को हलाक किया था। मुश्तबा शख्स ने कहा कि वो स्याहफाम लोगों को निशाना बना रहा था। 4 जुलाई को रियासत इलिनॉय के हाईलैंड पार्क इलाके में एक बंदूक बरदार ने एक इमारत के ऊपर से 1 मिनट से भी कम वक्त में 83 राउंड्स फायर किए, जिसमें 7 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए जो यौम आज़ादी की परेड के लिए जमा थे। नवंबर में रियासत कोलोराडो में हम जिन्स परस्तों के नाइट क्लब में एक शख्स ने फायरिंग करके 5 अफराद को हलाक और 17 को जख्मी कर दिया था। 22 साला मुश्तबा शख्स पर कत्ल और तअस्सुब पर मबनी जराइम के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। माहिरीन के नज़दीक ये रुझान परेशान कुन है। हम देख रहे हैं कि नफरत पर मबनी जराइम में गन ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। पहले तवील अरसे तक ऐसा नहीं था। हम अब अक्सर ये देख रहे हैं कि लोग आतिशी असला उन पर इस्तेमाल करते हैं जिन्हें वो अपने से मुख्तलिफ समझते थे। आमतौर पर कत्लेआम उस वाक़े को कहते हैं जिसमें 4 या ज़्यादा लोगों को गोली मारकर हलाक या ज़ख्मी किया जाता है। इसमें शूटर शामिल नहीं होता। सन 2022 में अमली तौर पर तकरीबन हर अमरीकी रियासत में ऐसे वाक़यात हुए जिनकी कुल तादाद 600 से ज़्यादा थी। कुछ लोग नफरत अंगेज़ बयानबाजी में इजाफे और तासुब पर मबनी तशद्दुद के दरमियान ताल्लुक़ देखते हैं। पिछले कुछ सालों में होने वाली सियासी बयानबाजी यकीनी तौर पर इसका सबब बनी है, और मेरे ख्याल में इसके साथ साथ नफरत पर मबनी ग्रुपों में इजाफा हुआ है। अगरचे कत्लेआम के वाक़यात कौमी सुर्खियाँ बनते हैं, लेकिन ये 2022 में अमेरिका में गन्स के ज़रिए होने वाली 40,000 हलाकतों में बहुत छोटी शरह है। इनमें से निस्फ से ज़्यादा ने खुदकुशी की। जून में कांग्रेस ने कई दिहाइयों में पहली मरतबा गन्स का कौमी कानून मंजूर किया। ये कानून उन लोगों तक आतिशी असले की रसाई नामुमकिन बनाता है जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा हों, और असलहे की ख़रीदारी के लिए पस मंज़र की जांच में इजाफा करता है। गन कंट्रोल के हामी मज़ीद आगे जाकर नीम खुदकार हथियारों पर पाबंदी लगवाना चाहते हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने जून में रियासत न्यूयॉर्क के कानून को कालअदम करार दिया, जिसमें हैंड गन को छुपाकर अवामी मकामात पर ले जाने पर पाबंदी थी। गन्स के हुकूक के हामी इस पर खुश हुए। मैंने जो नोट किया है कि वो जगह ज़्यादा महफूज हैं जहाँ कानूनी तौर पर गन्स रखने के कवानीन सादा हैं। हाल ही में जो फायरिंग के वाक़यात हुए, मुझे लगता है कि अगर कोई जगह असले के साथ महफूज नहीं बनाई गई तो वो आसान हदफ है। ऐसे में जब ये बहस जारी है, तरक्की याफ्ता सनती मुल्कों में अमेरिका में गन्स से होने वाली अमवात की शरह सबसे ज़्यादा रहेगी। क्रिस सिम्किंस के साथ मोहम्मद आतिफ, VOA न्यूज़। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से। VOA प्लस पर मालूमात अब आपकी दस्तरस में। सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो बचपन में रेलगाड़ी का दीवाना ना रहा हो। पाकिस्तान और भारत में ना सिर्फ रेलवे लाखों लोगों के लिए सफ़र का एक अहम ज़रिया है, बल्कि लोगों में रेलवे के निज़ाम के बारे में ख़ासी दिलचस्पी पाई जाती है। अदब में रेलगाड़ी की छुक छुक और उसकी कूक से भी एक रोमांच जुड़ा हुआ है। अमेरिका के अंदर भी बड़ी शाहराएं और गाड़ियां पसंद करने वाले कुछ अमरीकी ऐसे हैं जिन्हें रेलगाड़ी की छुक छुक पसंद है। हमारे साथ ही अंशुमन अब्ते कुछ ऐसे ही रेल फैन से हमें मिलवा रहे हैं। फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले रेलवे फ़ैन थीबा कॉन्स्टेंट यूट्यूब पर अपने चैनल सिंपली रेलवे के लिए न्यूयॉर्क सिटी से एल्बनी शहर तक के ट्रेन सफ़र का नया वीडियो शूट करने जा रहे हैं। I want to show the great side of train travel. मैं ट्रेन ट्रैवल के फ़ायदे दिखाना चाहता हूँ। मानता हूँ कि ये सफ़र का सबसे तेज़ या सस्ता तरीका नहीं है, लेकिन ट्रेन से आप बड़े मज़े से सफ़र कर सकते हो। अपने वीडियोस के जरिए थीबा ट्रेन के सीट्स, कैफ़े या टॉयलेट्स जैसी फैसिलिटीज़ का जायज़ा लेते हैं और ट्रिप के बारे में अपनी राय देखने वालों के सामने पेश करते हैं। बचपन से ही ट्रेन के दीवाने थीबा ने 2019 में मशगले के तौर पर
ट्रेन रिव्यूज यूट्यूब पर पोस्ट करने शुरू किए। इस वक्त उनके यूट्यूब चैनल के 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और अपनी हॉबी को उन्होंने कमाई के जरिए में बदल दिया है। मेरे वीडियोस के व्यूज़ के मुताबिक मुझे यूट्यूब और गूगल से पैसे मिलते हैं। जितना ज़्यादा लोग इन्हें देखेंगे उतने ही ज़्यादा पैसे मुझे मिलेंगे और इन्हीं पैसों से मैं अपने सारे ट्रिप्स का खर्चा निकालता हूँ। थीबो जैसे ट्रेन्स के दीवानों को रेल फैंस कहा जाता है और उनके मशगले को रेल फैनिंग। अमेरिका में इनकी तादाद के बारे में कोई अददोशुमार मौजूद नहीं, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकी तादाद हजारों में हो सकती है। ऐसे ही एक रेल फैन है न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले जूलियन ब्रिग्स, जो यहाँ की लोकल ट्रेन्स की तस्वीरें खींचना पसंद करते हैं। मैं सिर्फ इस बात को प्रमोट करना चाहता हूं कि ट्रेन का सफर किस कदर आरामदेह और माहौल दोस्त है। आप जानते हैं कि हम इस वक्त माहौलियात के बहरान से गुजर रहे हैं और गाड़ियों पर इन्हिसार कम करना खासकर अमेरिका में बेहद जरूरी है। जूलियन ने हाल में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और शहर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाली एक कंपनी से मुंसलिक है। जूलियन कहते हैं कि अपने शौक को पूरा करते हुए रेल फैंस को कुछ एहतियात करना भी जरूरी है। रेलगाड़ियां बड़ी होती हैं और खतरनाक भी साबित हो सकती हैं, तो ये जरूरी है कि आप हमेशा प्लेटफॉर्म की लाइन के पीछे खड़े रहें, कवानीन पर अमल करें और महफूज जगहों पर रहें। साथ ही ये भी ख्याल रखें कि सभी रेलवे मुलाजमीन फिल्मिंग के बारे में दोस्ताना रवैया नहीं अपनाते। और मिलिए एरन क्लेम से, जो न्यूयॉर्क और रियासत कनेटिकट के शहर न्यू हेवन के दरमियान चलने वाली मेट्रो नॉर्थ ट्रेन की पिक्चर्स लेने में बिजी हैं। इनके लिए रेल फैनिंग ट्रेन ट्रैवल की तारीख को प्रिजर्व करने का एक जरिया है। मैंने कई ट्रेन के आखिरी सफर के रिटायरमेंट ट्रिप किए या ऐसे दूसरे खास मौक़ों की फ़ोटो खींची हैं। मैंने पिछली सर्दियों में न्यूयॉर्क की एक तारीखी इवेंट को तस्वीर पर उतारा जब R32 ट्रेन 56 साल की लंबी सर्विस के बाद रिटायर हुई। यूनियन पैसिफिक या न्यूयॉर्क शहर की मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी जैसे कुछ हुकूमती इदारे भी रेल फैंस की हिमायत करते हैं। थीबो, जूलियन और एरन तीनों उम्मीद करते हैं कि रेलगाड़ियों के लिए दीवानगी के उनके इजहार से उन तमाम नौजवानों को इंस्पिरेशन मिलेगी जो इस हॉबी को अपनाना चाहते हैं। Go out and take pictures of trains, please. It's a lot of fun. अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA उर्दू। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए और जाते जाते आपको दिखाते हैं आइसलैंड के शहर रेकोविक में एक लावा शो की वीडियो। वैसे तो कुदरती माहौल में आप लावे के करीब जाना भी नहीं सोच सकते, लेकिन इस अनोखे शो में आए विजिटर्स लावा को करीब और महफूज तरीके से देख सकते हैं।